أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان اللهم اخلصنا بالكريم اللهم بارك لنا في أوقاتنا آمين. آج ہمیں انشاءاللہ روایت قانون کے قواعد میں باب الحمزتین شروع کرنا ہے اور حمزتین کے ممکن ہے ہمارے پاس حمزتین میں دو تین سبق ہیں، اسی طرح پھر حمزتین میں کلمتین کے بھی بنیادی باتیں انشاءاللہ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ پہلے ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزتین من کلمتین کا مطلب کیا ہے، کلمہ یا کلمتین؟ تو آپ کو اس سے پہلے کی بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو حرف حمزہ ہے نا وہ تمام مخارج میں سب سے دور ہے۔ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ تمام میں سب سے دور ہے، اس کی وجہ سے حمزہ کی ادائیگی میں ثقل پائے گا۔ تو ثقل کہتے ہیں بھاری پن کو۔ حرف حمزہ کو ادا کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، اس کی ادائیگی کے اندر بھاری پن ہے، مشکل ہے۔ تو جو اہل عرب تھے وہ حرف حمزہ کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ آسانی کر کے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عربوں کے جو آسانیاں تھی ان کی بولی چال کی، اس کو قرآن پاک کی ادا میں باقی رکھا، ٹھیک ہے؟ اور ان ادائیگیوں میں سے مختلف طرح کی ادائیگیاں ہیں، نقل کی ہے، ابدال کی ہے، تفسیر کی ہے، حذف کی ہے، ادغام کی ہے۔ تو انہی ادائیگیوں میں سے کچھ ادائیگی جو ہے وہ ہم حمزتین کے باب میں پڑھیں گے۔ اب حمزتین جو ہے آپ کو پتہ ہے حمزہ ایک حمزہ ہوتا ہے اور حمزتین دو حمزہ ہوتا ہے۔ اگر قرآن پاک میں دو حمزہ بھی اکٹھے آ جائیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہم دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں حمزتین۔ اب قرآن پاک میں جو حمزہ ہے وہ دو طرح سے اکٹھا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک ہی کلمہ میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اکثر جو پہلا حمزہ ہوتا ہے وہ استفہام کا ہوتا ہے، اس طرح کر کے۔ اگر دو حمزہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہو جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں حمزہ تین من کلمہ کہہ لیں یا فی کلمہ، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دو حمزہ ایک ہی کلمہ میں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ دو حمزہ دو کلموں میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ حمزہ ایسے نہ لکھ لیجیے گا، یہ تو انسانی نام ہوتا ہے، حرف حمزہ کی بات ہوگی، حرف حمزہ۔ اگر دو حمزہ جو ہیں وہ دو کلموں میں جمع ہو جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں حمزہ تین فی کلمتین، فی کلمتین بھی اور من کلمتین۔ اچھا، یہ حمزہ تین فی کلمتین یعنی کہ دو حمزہ دو کلموں میں۔ جیسے آپ بھی دیکھیں میں دو حمزہ ہے نا، دو حمزہ ہیں اور ایک ہی کلمہ میں جمع ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ آ علیحدہ ہے انضرتہم علیحدہ، تو یہ دو کلمہ ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی بھی آ کو کاٹ کے انضرتہم کو آ سے کاٹ کے وقف نہیں کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ تلاوت کرتے کرتے آپ پہ آ کے وقف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وقف جو ہے انضرتہم پہ ہی ہوتا ہے، انضرتہم کو آ سے کاٹا نہیں جا سکتا، اس لیے یہ ایک ہی کلمہ شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حمزتین من کلمہ کی مثال ہوگی۔ جاء، یہ دیکھیں یہ ایک کلمہ ہے، اور اشہد یہ دوسرا کلمہ۔ تو یہ دو کلموں کے اندر دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے، اور تو دو کلموں میں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں حمزتین من کلمتین۔ تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے حمزتین فی کلمہ کے بارے میں، حمزتین فی کلمہ کے بارے میں ہے کہ اگر دو حمزہ ایک ہی کلمہ میں جمع ہو جائیں تو اس میں
तब्दीली के क्या कवायद हैं? अगर दो हमजा एक ही कलिमा में जमा हो जाएं, अगर दो हमजा एक ही कलिमा में जमा हो जाएं, तो इस शक्ल के तीन शक्लें बनती हैं। यानी कि कुरान पाक में दो हमजा एक ही कलिमा में जमा होंगे तो तीन तरह से जमा हो सकते हैं, तीन तरह से जमा हो सकते हैं। जो पहले समय है, आप ये याद रखें कि तीन शक्लें हैं, तो तीनों शक्लों में ये होगा कि जो पहला हमजा है ना, वो हमेशा मफ्तू होगा, ऐसे करके पहला हमजा हमेशा मफ्तू होगा। और जो दूसरा हमजा है ना, वो मफ्तू, मकसूर या मफमूम तीनों हो सकते हैं। जैसे देखें इसकी मिसाल देखें, अनज़रतहुम, ठीक है। और फिर इन, ठीक है, पहला मफसूल है, दूसरा मकसूर है। उल्किया, सॉरी, यहाँ पे सब है। उल्किया पहला मफसूल है और दूसरा मकसूर है, ठीक है। ये तीन शक्लें बनती हैं। अब इसमें क्या है, इन तीनों शक्लों में कानून जो है वो पढ़ते हैं तस्हील माल इदखाल। इसको अच्छे से याद कर लें। हमज़तैन मिन कलिमा की तीनों शक्लों में कानून तस्हील माल इदखाल करते हैं। ये कायदा है, इसको अच्छे से रट लें कि तस्हील, सॉरी, हमज़तैन मिन कलिमा की तीनों शक्लों में कानून जो है वो तस्हील माल इदखाल करते हैं। हमज़तैन मिन कलिमा की तीनों शक्लों में कानून तस्हील माल इदखाल पढ़ते हैं। अब वो सवाल ये पैदा होता है कि तस्हील क्या होती है और इदखाल क्या होता है ना। कायदा तो हमने याद कर लिया है, अब हम इस इस्तेलाह को भी समझते हैं। तस्हील, तस्हील समझने से पहले ना आपको इसका जो उलट है ना लफ्ज, वो है तहकीक। ये समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको तहकीक, क्योंकि तहकीक आप पढ़ते हैं, अगर आपको लफ्ज तहकीक की समझ आएगी तो फिर तस्हील को समझना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। लफ्ज तहकीक, तहकीक का मतलब होता है हमजा को उसके मखरज से, हमजा को उसके मखरज से। अगर मैं लिखूंगी तो शायद ज्यादा टाइम लगे, मैं आपको आराम आराम से बोल रही हूँ तो आप इसको लिखें। हमजा को उसके मखरज से, ठीक है। एक बात, वाजे, हमजा को उसके मखरज से वाजे और सख्ती से अदा करना। हमजा को उसके मखरज से वाजे और सख्ती से अदा करना। जैसे अ अ जाओ ये जो सख्ती है, ये तहकीक है। हमजा को उसके मखरज से वाजे और सख्ती से अदा करना तहकीक किसे कहते हैं? हमजा को उसके मखरज से, यानी कि हमजा को हमजा के मखरज से सख्ती से अदा करना और बिल्कुल वाजे हो, कोई उसकी अदायगी और उसकी सख्ती जो है ना वो छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। ये होती है हमारे पास तहकीक। अच्छा, अब समझते हैं कि तस्हील क्या होती है। तस्हील के अगर आप मायने देखें ना तो आपको पता चल जाता है। तस्हील सहल अल्लाह, अल्लाह आसानी करे, तो सहल, सहल कहते हैं आसान, आसान करे। जैसे हम कहते हैं सहल पसंदी ना, तो वो होता है आसान तलब। तो तस्हील कहते हैं आसान करके पढ़ने को। हमजा बहुत सख्त होता है ना, तो हमजा को सख्ती से पढ़ना जरा कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, उनकी जुबान के लिए। तो हमजा को जरा लाइट कर देना, ठीक है, हमजा को लाइट कर देना, जरा नहीं पढ़ना। अच्छा, कितना नरम करना, इतना नरम भी नहीं करना कि हमजा जो है वो हर्फ मद्दा ही बन जाए। इतना नरम करना। अब इस तस्हील की डेफिनेशन को याद करें। हमजा, ये पेन नहीं चल रहा है। हमजा को, हमजा, हर्फ हमजा को हमजा और उस हर्फ से मद के दरमियान पढ़ना, उस हर्फ से मद्दा के दरमियान हमजा को, हर्फ हमजा को हमजा और उस हर्फ से मद्दा के दरमियान पढ़ना, जो हमजा
जो हमजा की हरकत के मुवाफिक हो। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ। तस्हील का मतलब क्या होता है? हर्फ हमजा को, हमजा, ठीक है, यानी कि हमजा पढ़ना, लेकिन एग्जैक्ट हमजा ना पढ़ना। आवाज कैसी होनी चाहिए? आप यहाँ पे ना एक स्केल लगा लें, ठीक है। एक स्केल लगा लें, स्केल के इस तरफ पे हमारे पास हर्फ हमजा, ठीक है, और इस तरफ है हर्फ मद। तो तस्हील का मतलब है आपने हमजा को ऐसे पढ़ना है कि ना वो पूरा हर्फ हमजा की तरफ जाए, 50% जो है वो हर्फ हमजा हो, और 50% हर्फ मद्दा की तरह हो। जैसे देखें, जोड़ता हूँ मैं ना। अब हाँ, ये बात एक याद रखने वाली है कि जो तस्हील है ना वो पहले हमजा में नहीं होगी। पहला हमजा तो मुहक्का के अदा होगा, तहकीक से अदा होगा। जो दूसरा हमजा है ना, इसमें तस्हील होगी। अब देखें, अगर आपने आ वाली शक्ल में तस्हील करनी है, तो आप हर्फ हमजा को कैसे अदा करेंगे? ये वाला जो हर्फ हमजा है, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ना ये हमजा रहे और ना ही जबर के मुवाफिक होता है अलिफ मद्दा, तो ना ही ये अलिफ मद्दा बने। आ आ दा होता है आ आ आ आ आ, यानी कि आ आ आ आ, ये ये है कि आप दोनों हमजा ही पढ़ें। और आ ये है कि आप हर्फ मद्दा की तरफ ले जाएं। तो आपने ना हमजा बनने देना है और ना अपने हर्फ मद्दा, हर हमजा और हर्फ मद्दा के दरमियान पढ़ना। हूँ। अच्छा, जैसे देखें, दोबारा से हम स्केल लगाते हैं। इस साइड पे हमजा है, ठीक है, इस साइड पे हमजा, इस साइड पे हर्फ मद्दा है। अगर आपने पढ़ना है इन्ना को ना, तो आपको ये पता है कि जो पहले वाला हमजा है ना, वो तो हमेशा तहकीक से अदा होगा। अब दूसरे वाला हमजा क्या है? ये जेर है, तो जेर के मुवाफिक होता है याय मद्दा। तो हम इन्ना को कैसे पढ़ेंगे? हमजा और याय मद्दा के दरमियान में। इन्ना, इन्ना, इन्ना। अच्छा, इसी तरह देखें, अब दोबारा से उल्किया के वाली शक्ल के लिए भी, इधर हमारे पास हमजा की राय की होगी, इधर हमारे पास हर्फ मद्दा है, ठीक है, और दरमियान में हमने इसके पढ़ना है। थोड़ा इधर को लंबा कर लें ताकि दरमियान बन जाए। अब हमारे पास है उल्किया ना, तो उल्किया में पहला हमजा तो तहकीक से अदा होगा। दूसरे हमजा में हमने क्या करनी है? तस्हील करनी है। तो वाउ पेश के मुवाफिक होगा वाउ मद्दा। तो यहाँ पे तस्हील कैसे होगी? हमजा और वाउ मद्दा के दरमियान में उल्किया, 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 ठीक है। अब जो तस्हील की असल अदायगी है ना, वो असातिज़ा से सुनने से ही आती है। असातिज़ा से सुनने से, असातिज़ा को सुनाने से, और मुस्तकिल मश्क करने से, किरात पर हमेशगी इख्तियार करने से, लिसानी रियाजत से। ठीक है, ये लफ्ज़ी वजाहत जो थी वो हमने पढ़ लिया। अब हमने तस्हील, हमने कहा था हमज़तैन मिन कलिमा की तमाम शक्लों में तस्हील माल इदखाल होती है। अब माँ का मतलब होता है साथ, तस्हील इदखाल के साथ। अब हमने पढ़ना है इदखाल क्या होता है, इदखाल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अच्छा जी, इदखाल कहते हैं एक कलिमा में अगर दो हमजा ज्यादा हो, ठीक है, अगर एक कलिमा में दो हमजा हो, तो जैसे अनजरता या इन्ना या उल्किया, तो क्या करना? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ ना, डुब्बे कर लूँ, आपको तीनों शक्लें समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब क्या करना कि ये जो है ना पहला हर्फ मद्दा, इसके दरमियान अलिफ ऐड कर देना। इदखाल का मतलब होता है दाखिल करना ना, तो पहले वाले हमजा के बाद अलिफ को डाल देना, इसको इदखाल कहते हैं, ठीक है। दो हमजों के दरमियान में अलिफ का इजाफा करना, इसे इदखाल करते हैं। तो अगर आप इदखाल नहीं करेंगे तो कैसे होगा? फिर होगा हूँ। लेकिन अगर आप इदखाल करेंगे तो हो जाएगा आ हूँ, आन, आन, आइन, आउन, आन, आइन, आउन, आन, आन, आउन।
अब यही बात ना मैं आपको कारी इब्राहिम साहब की किताब है नुब्जा, वहां से पढ़ा देती हूँ एक बार। जरा ये मेरी पुरानी किस्म की किताब हुई है, लेकिन समझने की बात है, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। यहाँ से देखें, यहाँ से कहते हैं तहकीक हमजा और तस्हील हमजा की अदायगी की पहचान और अमली मश्क। तहकीकुल हमजा, हमजा को उसके मखरज से वाज़ेह और सख्ती से अदा करना, जैसे तुम, इन्नकुम, उल्किया। तस्हीलुल हमजा, हमजा को उसके मखरज से इस तरह नरमी से अदा करना कि उसकी अदायगी, नेक्स्ट पेज, अगर इसको रोटेट करना पड़ेगा, कि उसकी अदायगी हमजा और उस हर्फ मद्दा के दरमियान हो, कि उसकी अदायगी हमजा और उस हर्फ मद्दा के दरमियान हो जो हमजा की हरकत के मुवाफिक हो। यानी कि हमजा मफ्तूह होगा तो बैन अल हमज वल अलिफ पढ़ेंगे, हमजा मजमूम होगा तो बैन अल हमज वल वाव पढ़ेंगे, मकसूर होगा तो बैन अल हमज वल या पढ़ेंगे। ठीक है, ये बातें हमने पहले इसको डिस्कस कर लिया, स्केल बना के ना, एक तरफ हमजा एक तरफ हरफ मद्दा। अगर दोनों हमजा मफ्तूह होंगे तो फिर कैसे होगा, दोनों मकसूर होंगे तो फिर क्यों कैसे होगा, दोनों मजमूम होंगे तो फिर कैसे होगा। उसी बात की इन्होंने लफ्जों में लिखा, कहते हैं यानी जबर वाले को अलिफ मद्दा के माबैन पढ़ना, जेर वाले को याए मद्दा के माबैन पढ़ना, और पेश वाले को वाव मद्दा के माबैन पढ़ना। ठीक है, फिर आगे उन्होंने ना तीनों के एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। दोनों हमजा मफ्तून हो, यहाँ तक सारी मिसालें, दोनों दूसरा मकसूर हो और दूसरा अगर मजमूम हो तो फिर क्या होगा। ये इंशाल्लाह हम एक बार वो है ना जो मुस्तस्नियात का बाब पढ़ लेंगे ना, फिर अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मिसालों की हमें ज्यादा तब समझ आए, क्योंकि इसमें कुछ जो है ना वो एक्सेप्शंस भी बयान किए हुए हैं। अब हम किताब की तरफ आते हैं अपनी, और किताब से पढ़ते हैं इंशाल्लाह। बाबुल मद तो हमने पढ़ लिया ना। हाँ, हमज़तैन मिन कलिमा देखें जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा स्पीड से ही जाएंगे एज यूजुअल, कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा। एक कलिमा में दो हम जमा हो तो उसकी तीन सूरतें हैं, यही हमने कहा ना कि पहला हमेशा मफ्तू होगा, दूसरा मफ्तू मकसूर या मजमूम होगा। तो कहते हैं तीनों सूरतों में दोनों हमजा के दरमियान अलिफ दाखिल करते हैं। यही पढ़ा हमने तफसील माल इदखाल, तो इन्होंने इदखाल का पहले जिक्र कर दिया। और पहले हमजा को तहकीक से पढ़ते हैं और दूसरे हमजा की तफसील करते हैं, यानी नर्म करके पढ़ते हैं। और इसको क्या कहते हैं, तस्हील माल इदखाल कहते हैं। कहते हैं एक कलिमा के दो हमजों पर फतह हो, जैसे अंदरता हूँ, इसकी कुल तादाद जो है वो 28 है। ठीक है, आगे उन्होंने मिसालें लिखी हुई हैं पहली शक्ल की। क्या कहते हैं, या पहले हमजा का फतह और दूसरे का कसरा हो, इसकी 24 मिसालें हैं कुरान पाक में। और फिर कहते हैं या पहले हमजा का फतह और दूसरे का कम्मा हो। ठीक है, तीनों शक्लों को यहाँ तक इन्होंने क्या बयान किया है, यहाँ तक उन्होंने तीनों शक्लों को बयान कर दिया है। यहाँ तक आओ, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है वो कुछ मुस्तस्नियात हैं, एक्सेप्शन हैं। इंशाल्लाह फिर इसको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हुआ तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।